بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے دن اسبگول پانی میں بھگو کر پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ سوکھی روٹی دودھ میں بھگو کر کھا لیا کرو، آپ کی عمر بڑھ جائے گی۔ پودینے کا پانی ناک اور کان میں ڈال لیجئے، کیڑے مر جائیں گے۔ اگر سر پر بار بار کنگھا کریں گے تو اس سے بلغم خارج ہوگی۔ آلو بھون کر کھانے سے رنگت نکھر جائے گی۔ جس کے بال گر گئے ہیں وہ پیاز کا رس نکال کر آملے کے تیل میں مکس کرے اور سر پر لگا لیں، چند دنوں میں بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ ناظرین، سفید چاول کھانا جوڑوں میں درد پیدا کرتا ہے۔ ابلے ہوئے چاولوں کا پانی سر پر لگانے سے بال چمکدار ہو جاتے ہیں۔ لہسن کھاؤ، دل کی بند نالیاں کھل جائیں گی۔ میتھی دانے کا استعمال کرنے سے سونگھنے اور چکھنے کی حس بہتر ہوگی۔ دہی کھانے سے ڈپریشن اور ذہنی دباؤ سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ کیلے کا جوس آپ کی ہڈیوں کو مضبوط کرے گا اور خون کی کمی نہیں ہونے دے گا۔ بھورے رنگ کا پاخانہ آنا اس بات کی نشانی ہے کہ کھانا ٹھیک طرح سے ہضم نہیں ہو رہا۔ پیشاب رک رک کر آتا ہے تو سمجھ لو کہ گردے ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہے۔ آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو جائے تو سمجھ جاؤ نظر کمزور ہونے لگی ہے۔ 3 چیزیں کھا لی جائیں تو بدن کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے: چنے، گوشت اور کھجور۔ ناظرین، زیادہ چائے پینے سے پیشاب میں یورک ایسڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ حالت حیض کے اندر اگر ٹھنڈا پانی استعمال کریں تو یہ عورتوں کے جسمانی توازن کو بگاڑ دیتا ہے۔ کھانے کے ساتھ ہری مرچ ضرور کھا لیا کریں، ہری مرچ بدن کی چربی کو پگھلاتی ہے۔ ناخنوں پر روزانہ تیل لگانے سے گھٹنے اور جوڑ مضبوط ہوتے ہیں، بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ خوبصورت، اچھے اور کھلے کھلے رنگ کے کپڑے پہننے سے آپ کا اعتماد بڑھے گا۔ آپریشن وغیرہ کے زخم کے نشان دور کرنے ہیں تو ایلو ویرا کے گودے میں تھوڑا سا زیتون کا تیل ڈال کر گرم کر کے روزانہ نشانوں پر لگائیں۔ لیکوریا اور ٹانگوں میں مستقل درد ختم کرنا ہے تو روزانہ 3 ہفتے تک صبح کے وقت 7 بادام کھا لیں۔ رات کو گھر کے برتن اور کچن کی صفائی نہ کر کے سونے سے خیر و برکت نہیں آتی۔ دانت میں شدید قسم کی درد ہو تو لونگ لے کر اس کو پیس لیں، اس پر لیموں کے چند قطرے مکس کریں اور متاثرہ دانت پر لگائیں۔ چھینکیں زیادہ آنے لگیں تو ہرا دھنیا سونگھ لیں۔ سبز مرچیں بہت جلدی خراب ہو جاتی ہیں، ان کو کچھ عرصے تک محفوظ کرنا چاہتے ہو تو ان کی ڈنڈیاں اتار دو۔ ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ پابندی سے جو کا پانی پی لیتے ہیں ان کی ہڈیوں کے ٹھوس پن میں 50% تک اضافہ ہو جاتا ہے۔ خالی پیٹ کیلا کبھی نہ کھائیں۔ ادرک کے رس میں شہد ملا کر کھانے سے نزلہ زکام میں آرام آ جاتا ہے۔ گزرے ہوئے کل کو آپ بس ایک بار دیکھ سکتے ہیں، دوبارہ نہیں دیکھ سکتے۔ کھانے کے بعد نیند آنے لگے تو جان لو یہ اچھی صحت اور تندرستی کی نشانی ہے۔ گھر سے چیونٹیوں کا نکلنا بند ہو جائے تو جان لو یہ غربت آنے کی علامت ہے۔ زیادہ ہنسنا انسان کا دل مردہ کر دیتا ہے۔ کھانا کھانے کے فوری بعد سونے سے بدن کا حصہ دل سخت ہو جاتا ہے۔ کالی مرچ کھانے سے گلا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سونے سے قبل اگر بات سے فارغ ہو لیا جائے تو گردے تندرست رہیں گے۔ ٹھنڈی چیزیں کھانے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔
सोने से कबल पांव की तेल से मालिश कर लिया करो, आंखों की बीनाई तेज हो जाएगी। बकरी का दूध पियो, बदन में खूबसूरती आ जाएगी। भेड़ का दूध सर की खुश्की को दूर करता है। डिप्रेशन में मुब्तला अफराद में हड्डियों के कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमेशा मुस्कुराते रहना इंसान के बदन में नुकसानदेह बीमारियों से लड़ता है। 5 मिनट की मुख्तसर नींद दोपहर को लेने से याददाश्त को बेहतर किया जा सकता है। जामुन के दरख्त के नीचे बैठने से लकवा की बीमारी करीब नहीं आ पाएगी। औरत घर के वॉशरूम में जाते वक्त सर पर कपड़ा ना ले तो भूलने की बीमारी लग जाती है। गीले बालों कंघा करने की आदत से बाल वक्त से पहले कमजोर और गिरने लगते हैं। नमक डालने वाली फजूल आदत से याददाश्त कमजोर हो जाती है। कान के अंदर वाले दाने निकल आना समात के कम होने की अलामत है। पेट की दाईं जानब सूजन आ जाए तो समझ लो पेशाब में रुकावट आने वाली है। सांस लेने में तकलीफ हो तो सब्ज चाय पी लिया करो। पैदल चलने से कबल अंजीर खा लेने से घुटनों में ताकत आ जाती है। जिस्म में थकावट हो तो रात की रानी का फूल सूंघना शुरू कर दो, थकावट दूर हो जाएगी। अनार अगर हरीर के मुरब्बे के साथ लिया जाए तो जवानी बरकरार रहती है। सोने से पहले पांव की तली पे सूरजमुखी के तेल की मालिश कर लो, कद बढ़ने लगेगा। शिमला मिर्च सूंघ लेने से दिमाग मजबूत होता है। गर्म और मीठी चीजें खा लीजिए, लेने के बाद पानी पीना दांतों को खराब कर देता है। लींबू का रस चेहरे पर लेप करने से चेहरे की छाइयां गायब हो जाती हैं। अगर आपके खून में कैस्ट्रोल बाकायदगी से बढ़ने लगे तो बादाम खा लिया करें। नाश्ते में खजूर का इस्तेमाल करने से जादू टोने से महफूज रखता है। दाढ़ी रखने वालों को मर्दाना कमजोरी नहीं होती। खवातीन के लिए चेहरे के बालों का खात्मा और चेहरे की चमक पैदा करने के लिए नुस्खा। बेसन को पानी में घोलकर चेहरे पर लगाएं। जब यह हल्का खुश्क हो जाए तो इसे हाथों की मदद से खुरच कर उतार लो। इससे आपके चेहरे के बाल जड़ से निकल आएंगे। पानी में नमक डालकर सूती कपड़े से उसे चेहरे पर मलें। तकरीबन 1 हफ्ते के बाकायदा इस्तेमाल से बाल खत्म हो जाएंगे। मूली का सालन खाने से दांत मजबूत होते हैं। करेले की खुशबू रोजाना सूंघ लेने से सांस की बीमारियां खत्म हो जाती हैं। छोटी मक्खी के शहद का एक कतरा आंख में डालने से आपकी बीनाई तेज हो जाएगी। जो खवातीन शहद का इस्तेमाल नाश्ते में करती हैं उनकी जिल्द चमकदार और मुलायम हो जाती है। दूध नीम गर्म करके पीने से मर्दाना ताकत बढ़ जाती है। अगर बदहजमी से बचना चाहते हो तो खाना आहिस्ता खाओ। सोने से कबल नीम गर्म पानी इस्तेमाल करना, इसबगोल का इस्तेमाल करना गुर्दे साफ कर देता है। गर्म दूध में थोड़ा सा सौंफ मिलाकर पी लो। दिन भर भूख प्यास की वजह से होने वाली कमर दर्द, जिस्म दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। फ्रूट चाट का जायका मुनफरिद बनाने के लिए इसमें लींबू का रस निचोड़ दें। रात को सोने से कबल आंखों में सुरमा डालना सुन्नत है। इससे आंखें ठीक रहती हैं, बदन की कमजोरी को दूर करता है और कुव्वत में बेपनाह इजाफा करता है। पपीते के बीज पेट के कीड़ों को खत्म करते हैं। आबे जमजम को देखने से नजर तेज होती है।
मट्टी के बर्तन में खाना खाने की आदत से कैंसर जैसी बीमारी नहीं होती। ज्यादा देर तक जीना चाहते हो तो सादा खुराक खाओ, इससे कम बीमारियों में मुब्तला होगे। अनार के छिलके का छोटा सा टुकड़ा चबाने से खांसी और पुरानी एलर्जी खत्म हो जाती है। अपने पैरों को गर्म पानी में भिगोने से आपके सर को बेहतर महसूस करने में मदद मिलेगी। अगर आपको सोने में मुश्किल होती है तो 1 मिनट के लिए तेजी से पलकें झपकें। अंगूर खाने से फेफड़ों को ताकत मिलती है। घर में रिज्क की तंगी होने लगे तो सुबह उठते ही 3 सजदे शुक्राने के अदा करें। सुबह को उठते ही अल्लाह को राज़िक कहकर आवाज दें, रिज्क में कभी कमी नहीं आएगी। रात को चावल खाने से जिस्म में चर्बी भर जाती है। सुर्ख शलजम हफ्ते में 2 बार खाने से मोटापे से जान छूट जाती है। शौहर को अपने काबू में रखना है तो उसको अच्छा खाना बनाकर खिलाएं। आवाज बैठ जाए तो गुड़ वाले चावल बनाकर खाएं। लिकोरिया का मसला है तो ज्यादा टमाटर खाएं। अगर चेहरे को खूबसूरत बनाना है तो बादाम का तेल चेहरे पर लगाएं। अगर बाल काले करने हैं तो अनार का रस बालों में लगाकर धो डालो। एक तहकीक के मुताबिक पॉपकॉर्न सेहतमंद खाने की शय है। ये हड्डियों और दांतों के लिए बेहतरीन है। ज्यादा बोलने वाले इंसान की दलील में कोई वजन नहीं होता। नाजरीन, कहा जाता है कि अगर किसी औरत की अपने ससुराल में इज्जत नहीं है या कोई इसको अहमियत नहीं देता तो वो घर में सूरा यासीन रोजाना 3 बार पढ़ लिया करे। मच्छर काट जाए तो चम्मच गर्म करके काटने वाली जगह पर लगा लो। इस तरह मच्छर का काटने का असर खत्म हो जाएगा और आपको खारिश नहीं होगी। औरत की जुबान उसके अच्छे और बुरे होने का सबूत देती है। लहसुन खाने से बदन में दर्द नहीं होता और लहसुन खून को पतला करता है। अगर खून की शरियानें बंद होने लगें तो रोजाना खाली पेट लहसुन का इस्तेमाल करें। जो इंसान खाने से कबल और बाद में हाथ धोएगा उस पर रिस्क की फराखी होगी और वो बीमारियों से महफूज रहेगा। अगर आपको अचानक चक्कर आने लगें तो गहरी सांस लें, एक जगह आराम से बैठ जाएं या लेट जाएं। अगर आपके बच्चे रात को बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं तो जब भी आटा गूंदें, जिस पानी से आटा गूंदें, ये पानी थोड़ा थोड़ा बच्चे को पिला देने से बच्चा रात को बिस्तर पर पेशाब नहीं करेगा। मुर्ग के साथ मूली खा लिया करें, नुकसान से बचे रहेंगे। सामान चोरी होने का कोई डर नहीं। या जलीलो 10 बार पढ़कर मालो असबाब और रकम वगैरह पर दम कर दें, इंशाल्लाह सामान चोरी होने से महफूज रहेगा। और अगर आयतल कुर्सी भी 1 मरतबा पढ़ ली जाए तो बहुत फायदा होगा। घर में अगर बिल्ली बच्चे पैदा कर दे तो घर का मालक माला माल हो जाएगा। घर में सुबह सुबह परिंदों की आवाजें आना इस बात की निशानी है कि कभी रिज्क की तंगी नहीं होगी। सफेद खरगोश घर में दौलत लाता है। घर से मकड़ी का जाला हटाओगे तो दौलत आएगी। गोभी ज्यादा खाने से जिल्द लटकेगी नहीं। रोजाना कच्ची अदरक के इस्तेमाल से बढ़ती हुई उम्र छुप जाती है और चेहरा जवान नजर आने लगता है। ठंडा पानी गर्म पानी से ज्यादा हल्का होता है। 10 मिनट मुस्कुरा लेना बदन के लिए इतना ही फायदेमंद है जितना कि 2 घंटे सो लेना। नमक और शहद से दांत साफ करने से दांत चमक उठेंगे। मेथी की सब्जी खाने से कमर का दर्द जाता रहेगा।
पालक का पत्ता 4 दिन चेहरे पर रगड़ने से चेहरे की चर्बी पिघल जाएगी। दूध में किशमिश शामिल करके खा लो, इससे दिल को ताकत मिलती है। खाली पेट नहाने से जिस्म की गर्मी दूर होगी। जमीन से जब भी उठने लगो तो सहारे से उठो, उम्र में इजाफा होगा। ज्यादा पानी पीने से थकावट कम होती है। मसूर की दाल के इस्तेमाल से पेट की बीमारियां खत्म होती हैं। सौंफ मिली रोटी बनाकर खाने से चेहरे की झुर्रियां खत्म हो जाएंगी। मीठा खाकर ठंडा पानी इस्तेमाल करने से दांत जल्दी गिर जाते हैं। ज्यादा मुर्गी का गोश्त पेट को बढ़ाता है। ज्यादा परेशानी मैदे को कमजोर कर देती है। ज्यादा खौफ खाने वाले बंदे के गुर्दे कमजोर हो जाते हैं। थोड़े से पानी के अंदर सिरका मिलाकर सब्जी के ऊपर छिड़क दो, सब्जी ताजा रहेगी। बाजारों की तैयारशुदा चीजें खाने से वजन में तो इजाफा होता ही है, साथ हाफजा भी कमजोर हो जाता है। बाजरे की रोटी दूध के साथ खाने से जिस्म में ताकत आ जाती है। आड़ू खाने से नजर तेज होती है। सफेद चने शुगर को कम करने में मुफीद हैं। ज्यादा गर्म खाने के इस्तेमाल से गले की बीमारियां जन्म लेती हैं। दिल और फेफड़ों को भी गर्म खाना कमजोर करता है। गुलाब के फूल के पत्ते चबा लेने से खून की कमी दूर होती है। सेब के रस में शहद मिलाकर पी लेने से हर किस्म की खांसी बंद हो जाती है। लहसुन खाने से बंद हैज खुल जाता है। हर खाने के बाद मीठा खाओ, बीमारी नहीं आएगी। नमकीन चीजें रात के वक्त खाने से फायदा होता है। पेट में दर्द हो तो नहार मुंह दही खा लिया करो। खाने के फौरन बाद सो जाने से कान जल्दी बहरे होते हैं। नींद ना आ रही हो तो दूध को गर्म करके आंखों पर लगाओ, नींद फौरन आ जाएगी। रात के वक्त ज्यादा चावल खाने से नींद ना आने की बीमारी लग जाती है। लस्सी और दूध एक साथ पीने से मैदे में दर्द का खदशा है। सरसों के साग के इस्तेमाल से कैंसर जैसी बीमारी से बच सकते हैं। निहारमू पुदीने वाला पानी पीने से चेहरे पर कभी दाने और झुर्रियां नहीं आएंगी। गन्ने का रस पीने से रुका हुआ पेशाब खुलकर आएगा। कान बहरे हों या कम सुनाई देता हो तो गुड़ में सूंड मिलाकर गर्म करें और मरीज को खिलाएं। कानों की आवाजें आना बंद हो गई और कान खुल जाएगा। प्याज का रस गर्म करके 5 से 7 कतरे कान में डालना बहुत मुफीद है। बार बार पेशाब की हाजत हो तो थोड़े से भुने चने खाकर ऊपर से थोड़ा सा गुड़ खा लें। 1 हफ्ता ऐसा करें, आफाका होगा। गन्ने का रस पीने से हिचकी रुक जाएगी। अंगूर का रस पी लेने से आधे सर का दर्द हो तो आराम आ जाता है। दूध में शहद मिलाकर पी लेने से आप बूढ़े भी हो जाएं, हड्डियां मजबूत रहेंगी। पुदीने का शरबत बनाकर पीने से मतली हो तो आराम आ जाता है। रात को हरीड़ का मुरब्बा खाने से जोड़ों के दर्द से निजात मिलेगी। चेहरे की झुर्रियां और छाइयां दूर करनी है तो अंडे की सफेदी मुफीद है। अगर आपके हाथों का रंग काला पड़ जाए तो सोने से कबल लीमू का रस लगाएं। रात को कभी तंग कपड़े पहनकर मत सोएं, बल्कि खुले और सादा कपड़े पहने। सफेद प्याज का रस निकालकर बालों में लगा लो, बाल गिरना बंद हो जाएंगे। सोकर उठने के फौरी बाद आंखों को ज्यादा मसलने से आंखों की बीनाई कम होने का खदशा है। अगर सीने की जलन की प्रॉब्लम हो तो केला खा लिया करो। नाजरीन,
دل کی بیماری کا مسئلہ ہو تو پیاز کی چٹنی بنا کر کھا لیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑھ کر سود یہ ہے کہ کسی مسلمان کو شرمندہ اور بے عزت کرنے کے لیے زبان درازی کی جائے۔ نیم گرم پانی کے ساتھ ادویات استعمال کرو، ادویات جلدی اثر کرتی ہیں۔ دودھ کی نسبت دہی جلدی ہضم ہو جاتا ہے، اور دہی آنکھوں کے انفیکشن سے آپ کو بچاتا ہے۔ اس دشمن سے مت ڈرو جو اکیلے میں تم پر وار کرے، بلکہ اس دوست سے ڈرو جو محفل میں تمہاری عزت پر وار کرے۔ ناظرین، اگر مسوڑے درد کرتے ہوں یا خون آتا ہو تو پھول گوبھی کھاؤ، افاقہ ہو جائے گا۔ 3 علامات اگر آپ میں پائی جائیں تو آپ کو زیادہ پانی کی ضرورت ہے۔ اگر منہ سے بدبو زیادہ آتی ہو، سر میں درد زیادہ رہتی ہو، یا آپ کے پیشاب کا رنگ پیلا ہو۔ مچھلی کھانے سے بدن کے دردوں میں قدرتی طور پر آرام مل جاتا ہے۔ ناظرین، جب موت انسان کے قریب آتی ہے تو 3 چیزیں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ نمبر 1، طبیب بے وقوف بن جاتا ہے، شفا کے سارے اسباب موت کے سبب بن جاتے ہیں، دوا اپنا نفع پہنچانے میں اپنا اثر کھو دیتا ہے۔ مرغی کے پنجوں کی یخنی پینے سے پٹھے مضبوط اور جوڑ لوہے جیسے مضبوط ہوتے ہیں۔ ناظرین، دانتوں پر ٹھنڈا گرم لگتا ہو تو نمک والے پانی سے غرارے کریں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کسی مومن کو غمگین کرنے کے بعد اسے تمام دنیا بھی عطا کر دے، تب بھی یہ اس کا کفارہ نہیں ہو سکتا اور نہ اسے کوئی اجر ملے گا۔ جو افراد پیشاب کرنے کے لیے بار بار اٹھتی ہیں ان کو اپنی شوگر کا ٹیسٹ کروانا چاہیے۔ گرمی میں کام کرنے والی عورتوں کی سکن بہت جلد لٹک جاتی ہے۔ جن لوگوں کو بھوک نہ لگتی ہو وہ کھانے کے بعد 1 امرود کھا لیا کریں۔ ناظرین، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں